The human voice is the most beautiful instrument of all, but the most difficult to play. We all know the human voice is versatile tool for communication. आवाज छूना ही अपने में एक ना दिखा किसी को और ना ही इसे कोई छुपा, पर फिर भी हर दिल को छूती है हमारी आवाज। ऐसा क्या है इस आवाज का राज, आइए जानते हैं सब। So, a very good evening, everyone. I hope you all are safe and sound. I welcome you all to the episode 8 of Success in Oblink Series Season 1. This is Gautam Sabarwal and we have Ananya Gupta with us. And we are a part of Innoblist Private Limited. And we will be hosting today's live session, which is on the topic Beat Anxiety with Voice and its Modulation. Today, we are so honored to have RJ Shwetima with us. She is the most loving and renowned radio jockey of Jammu and the programming head of 98.3 Mirchi Jammu. She is a 3-time national gold medalist of AIU in Kathak and folk orchestra and a singer by heart. She is currently making Jammu's every morning soothing and super vibrant by the intent to keep her city khush. She is passionate, vibrant and believes in spreading happiness and love. We welcome you to our live session and looking forward to have a great session ahead. Thank you so much, Gautam, and thank you so much for considering me for such a beautiful session. Thank you, ma'am. On the other side, we have Divya Gupta ma'am with us, a certified neuro-linguistic PI coach and trainer. She has been working in this field for over a decade now, currently undertaking assignment of workplace wellness and corporate wellness. She is the founder and director of Nobler Private Limited, a mind-handling solution company that conducts wellness trainings, design company policies, and provide personalized consultancies too. It has been immensely beneficial, especially in this critical time like now. We welcome you, ma'am. Thank you so much. Thank you. So, ma'am, हम सब रेडियो सुनते हैं, हम सब सुनते आ रहे हैं रेडियो बचपन से ही। कहीं पे भी जाते थे तो कार में वी ऑलवेज यूज्ड टू प्ले रेडियो। तो एक जॉकी का क्या रोल होता है रेडियो में कि बस वो अपनी आवाज से ही, मतलब विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर, किसी को आमने सामने बिना देखे, तो कैसे अपनी आवाज से इतने लोगों को लीड कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं? वैसे प्रिसाइजली बताऊं तो हमारी जब ट्रेनिंग्स होती है ना, हमें पहली चीज जो बताई जाती है वो ये कि लोग रेडियो ट्यून इन करते हैं म्यूजिक सुनने के लिए। एक रेडियो जॉकी है वो बस एक इंट्रोडक्शन है, बट देन इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से लोगों से कनेक्ट करते हो, सो दैट दे डू नॉट ट्यून इन फॉर म्यूजिक बट दे ट्यून इन फॉर यू। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके पास। और बीइंग अ जॉकी शुरू में ना ऐसा लगता था कि हाय कितना फैसिनेटिंग सा है ना बीइंग अ रेडियो जॉकी, बट देन व्हेन यू सिट ऑन दैट सीट, वो एक क्यूबिकल होता है, आपके सामने एक माइक होता है, कंसोल होता है, जिससे आपको बात करनी है एंड यू डोंट इवन नो कि आप किससे बात कर रहे हैं। हु इज दैट पर्सन, उसकी एज क्या है, उसके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा, क्या वो परेशान होगा, क्या वो घर बैठ के सुन रहा है, क्या वो गाड़ी चला रहा है। तो कंसिडरिंग एवरी एस्पेक्ट यू स्पीक, और सच में एक मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है कि जब आप अपने दिल की बात करते हो ना, वो हर इंसान से कनेक्ट कर जाती है। एंड समवेयर बीइंग अ जॉकी डज नॉट इवन, मतलब वो सिर्फ आपको एक कानों तक नहीं पहुंचाती, वो हर इंसान जो वो सुन रहा है वो अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में उसे अपनी तरीके से परसीव करता है। अब जब मैं ये कहूँ कि अच्छा याद है आखिरी बार खुद के साथ वक्त कब बिताया था? अच्छा याद है वो जब फोन बजता है तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है, किसका फोन है? तो ये स्टोरी हर इंसान को अपने अपने तरीके से समझ आएगी, हर इंसान अपने तरीके से उसे इमेजिन करेगा और अपने लिए एक चीज सोचेगा। So that is the beauty of radio and that is the beauty that one mic gives us to connect with so many thousands and thousands of people. And that's so wonderful, Gautam, because see, everybody craves for that kind of experience. Somewhere down the line, everybody wants to touch hearts. तो हमारी जितनी जहद रहती है जो भी हम काम करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और आप तो एक कमरे में एक क्यूबिकल में बैठ के आराम से पहुंच जाते हो, एंड ऑफ कोर्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बट येट विद ब्यूटी। I would like to share one story. चलो वो बाद में सुनाऊंगी, अभी let's move on to the next
नहीं सुना दो मुझे याद 2017 सितंबर में हम लोगों ने अनऑफिशियली लॉन्च किया एंड हमारा ऑफिशियल लॉन्च अक्टूबर में था। तो वो 20-25 दिन बीच के जो थे वो ट्रायल फेज था, ताकि हम फ्रिक्वेंसी चेक कर सकें, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए और पता चल जाए कि ग्लिचेस कहाँ पे हैं। बट वी वर ऑन, टोटली ऑन है। बीच में एक दिन वो याद है नेस्ले की एक्टिविटी जिसमें वो सुबह 5 बजे अकेले बैठा होता है शो में और बोलता है कि यार कुछ भी है दिल में तो फोन करो। आई जस्ट ट्राइड, मतलब विदाउट इवन थिंकिंग उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने बस रेडियो पे ये बोला एंड उस वक्त ना ब्लू व्हेल चैलेंज बहुत चल रहा था एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर कमिटिंग सुसाइड्स। तो मेरे दिमाग में ये थॉट था कि यार जब कोई खुश ही नहीं है then how can I even say कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। और अगर आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स हैं विद समवेयर एक्चुअली सेज कि यार यू आर नॉट हैप्पी, तो मैंने वहां से बात शुरू की और मैंने ये कहा कि यार आई डोंट नो आप मुझे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आई डोंट नो मेरा आपसे कुछ रिश्ता है या नहीं है, बट अगर इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो और आपके दिल में कोई भी ऐसी बात है जो आप किसी को नहीं बता पाते, यू डोंट इवन नो मी, तो बाय डिफॉल्ट नॉट जज यू, तो मैं भी आपको नहीं जानती, तो जजमेंट का तो सवाल ही नहीं उतरता। जो है ना बस मुझे कॉल करके सुनो, कुछ भी जो आपको परेशान कर रहा है। You know, I get a call. वो लड़का रो रहा था, that boy was literally sobbing, और 2 सेकंड के लिए मैं से सुन हो गई कि यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया। एंड रोते रोते ही से दीदी मुझे रोक लो, एंड जैसे उसने प्लीज मुझे रोक, आपने बोला ना मैं आपको बता सकता हूँ, पहले मुझे बोलो कि रुक जाओ। मैंने लिटरली यही रिएक्ट किया, मतलब मुझे खुद में समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कह दिया है ऐसा। मैंने कहा अच्छा तू जो भी है जहाँ भी है जो भी कर रहा है फिलहाल रुक जा, पहले मुझे बता क्या हुआ है। तूने दीदी बोला, पहले दीदी की तरह पहले बता हुआ क्या है। He started crying and 5 मिनट मैंने उससे बात की, उसे थोड़ा काम डाउन किया, उसे इधर उधर की बातें की उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो थोड़ा शांत हुआ, नॉर्मल हुआ। He shared with me कि दी मैं तवी के ब्रिज पे खड़ा and I was about oh my god, मतलब मैं क्लूलेस थी कि ये क्या हो रहा है। एंड उससे पहले शायद कभी ये रियलाइज नहीं हुआ था कि ये रेडियो इतना बड़ा मीडियम हो सकता है। एंड देन आई स्पोक टू हिम, उसके चैलेंजेस क्या थे। ही वाज इन 12th, 12वीं कक्षा का स्टूडेंट था एंड ही वाज डीलिंग विद कि मुझे मैथ्स नहीं लेना था, मुझे जबरदस्ती मैथ्स दिलाया। आई लव्ड बायो फ्रॉम एवर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते हैं। So he was struggling with so much, जिसे वो लाइक करता था, उसके साथ इश्यूज थे, घर वाले प्यार नहीं, and so many thoughts were going on in his head. And उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि ये जो कमरा है, ये जो माइक है, ये सिर्फ माइक नहीं है। This is a medium where you can actually touch hearts. और उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं लव यू जिंदगी एक स्टोरी टेलिंग सेशन किया करूंगी हर रोज अपने शो पे, एक कहानी जो कि मैं रियल लाइफ से उठाती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं जा कुछ इंसिडेंट्स देखा, मैं वो कहानी उसको कहानी में, क्योंकि बचपन में हम कितनी कहानियां सुनते हैं और वो कहानियां they stay with us. So I transformed the real life stories into stories और उन्हें मैं रेडियो पर सुनाती थी ताकि कोई भी सुने तो उसे लगे हाँ यार ये गलती तो मैं भी करता हूँ, हाँ यार सच में सोल्यूशन हो सकता है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। So that way शायद एक सबसे बड़ा रीजन था कि मैं बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर पाई। नहीं तो ऐसा नहीं है कि टॉकीज नहीं है, बहुत, but this thing made me actually connect with them beyond something. So that's the point, you know, the purpose of starting up this live was that we need to share success stories of people who are into profession, who have passed, you know, toughest time in their life. अभी भी जैसे आप पेंडेमिक का टाइम देखो, हर कोई आप मतलब आज इवनिंग में ही लाइक मैं अपना मोबाइल चेक कर रही थी तो एंड देयर वाज सो मच ऑफ, यू नो, नेगेटिविटी एंड सो मच ऑफ डेथ न्यूज दैट वाज हैपनिंग ऑल अराउंड कि मेरे को लग रहा था यार व्हाट आर वी अप टू। एंड इवन इफ हम लोग घर बैठे हुए हैं, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? क्या हम लोगों को एक साथ जोड़ नहीं सकते? क्या उनका दुख नहीं बांट सकते? क्या उनको एक दिलासा नहीं दे सकते कि थिंग्स विल सॉर्ट आउट? तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो पूरा सीरीज है ये इसी के ऊपर बेस्ड था। और फॉर्चुनेटली वी गॉट इन टच विद यू एंड वी गॉट, यू नो, अपॉर्चुनिटी टू कॉल यू ओवर हियर
ताकि हम इकट्ठे मिलके कुछ एक थिंक अबाउट समथिंग दैट वी कैन क्रिएट फॉर JNK। कि जरूरी नहीं है कि आप फ्रंटलाइन वर्कर ही होने चाहिए किसी की मदद करने के लिए। राइट नाउ 4 people we are connected and we are connected। हम अपने अपने प्रोफाइल पे न जाने कितने लोग कनेक्टेड हैं। अगर हम में से 2 लोग भी ऐसे हुए ना जो इस लाइफ से कुछ सीख गए या उनके में कुछ इतना सा भी चेंज आया, so the purpose will be sorted। Definitely and that's the agenda for इसके साथ साथ ना just one more thing that mind is a very tricky part of the body and probably not the most untangible thing। अब उसको पकड़ नहीं सकते। तो जब हमारे साथ कुछ होनियां हो रही होती हैं तो हम अपने मन में ही कहानियां बनाते हैं। तो वो कहानियां अगर बाहर आना चाहें तो कैसे आए, क्योंकि हम उनके पास ना ही प्लेटफॉर्म है और ना ही वो आवाज है। आवाज होते हुए भी शब्द नहीं मिलते क्योंकि आदत नहीं थी। तो आदत लाने के लिए हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जहां पर लोगों को अपनी कहानियां सुनाने का मौका मिले अपनी ही आवाज में और अपने एक्सप्रेशंस को बाहर लेके आए। अब जैसे आप बात कर रहे थे ना, आपकी वॉइस में एक वेरिएंस आ रही थी कि कभी आवाज में ऊपर और कभी नीचे। तो वो वेरिएंस जब इंसान के अंदर आनी शुरू हो जाती है, वो समय के साथ चलना शुरू हो जाता है, वक्त के साथ चलना शुरू हो जाता है। तो वो वक्त के साथ लोगों को हम ढाल पाए कि जो हो रहा है वो तो होगा ही होगा, उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन कैसे उस होने के साथ हम बढ़ चले आगे। तो खूबसूरती वहीं पर ही आ जाएगी और कुछ ना कुछ ये जरूर पेंडेमिक हमें सिखा के जाएगा। बिल्कुल। मैम, जैसे अभी आप बात कर रहे थे सिचुएशन के बारे में कि कितनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, सो इफ वी टॉक अबाउट एंजाइटी, आजकल हर दूसरे बंदे को एंजाइटी है। सो आइदर वो उसके बारे में बात नहीं करते हैं या फिर दे डोंट रियलाइज इट। तो क्या हम उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी बताया कि कहानियां जो आप अपने मन में बता रहे हैं अपने आप को, किसी को सुनाएं। कोई नहीं भी है ना, तब भी अपना मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करें, रिकॉर्ड करें और अपने आप को ही सुनाएं। आप खुद जानेंगे कि अंदर चल क्या रहा है। हम अपने अंदर इतनी कहानियां उलझा लेते हैं, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, तो मेरे साथ क्या होगा? क्या होगा आपके साथ? जब आपके साथ भगवान है, आपके साथ आपके फैमिली वाले हैं, आपके साथ आपके दोस्त हैं, क्या होगा आपको? दुआएं देने वाले। तो पॉजिटिविटी की कमी ना हो और ऐसे इंसान की भी कमी ना हो जो इंसान आपकी बात सुने, तो आप वो इंसान अपने लिए खुद बन जाए। तो जब अपने ही ख्यालों को, अपनी ही स्टोरीज को, मेंटल स्टोरीज को जब बाहर लेके आएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ताकत कैसे आ जाएगी अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंजाइटी तो उधर ही खत्म हो जाएगी। और खुद को दिलासा नहीं देंगे, लोगों को भी दिलासा देने लगेंगे, फैमिली को भी तो सपोर्ट चाहिए। तो मैं आपका क्या कहना है इसमें? अरे सच में हम ना ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं। ये रियलिटी मतलब किसी और के हम पहले ही परसीव करने लग जाएंगे, हाय अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, अगर मेरे साथ मतलब पॉजिटिव साइड हमें बाद में दिखती है, पहले नेगेटिव पे दिमाग जाता है। सो दैट इज वेयर यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन कि वो जो गुच्छे उलझते जा रहे हैं, याद है जब गुड्डियां उड़ाते हैं तो पीछे एक बंदा खड़ा रखा होता है जो उसको स्ट्रीमलाइन करता है ताकि आपकी उलझ ना जाए। वो डोरी जो उल्टी है वो खुद ही सुलझानी पड़ेगी। नोबडी इज गोइंग टू कम डिटैंगल लाइक यू सेड, वो कोई भी नहीं करता। राइटिंग एक्सरसाइज, खुद से बात करने की एक्सरसाइज, आई सो मच यूज्ड टू डू इट। आपने जब कहा ना, मेरे को एकदम से हंसी से ले आई क्योंकि मैं बहुत करती थी। मैं शीशे मैंने ऐसे बस खड़े हो जाना, क्या पागल हो गई तू, क्या करती रही है? नहीं, दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी डन लाइक दिस, तो ऐसे करना चाहिए था ना। अच्छा अभी भी गलत नहीं, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, सही हो जाएगा। चल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चांस लेके देख लेते हैं ना, ठीक हो जाएगा। एंड दैट थिंग एक्चुअली हेल्प्ड मी गेटिंग आउट ऑफ दैट जोन, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि हर चीज का सॉल्यूशन मेरे पास है। इट्स जस्ट दैट कि मेरे प्रॉब्लम पे ज्यादा होता था, सॉल्यूशन पे कम। बट देन व्हेन यू चेंज योर लाइक शिफ्ट, जैसे आप वो लेकर आते हो, आप स्ट्रीमलाइन करने लग जाते हो, अपनी चीजों को प्रायोरिटी वाइज लिखने लग जाते हो, आप बात करने लग जाते हो, आंसर्स खुद ही से जाते हैं। गाइड तो अपने अंदर ही है, समझ तो अपने अंदर ही है, सिर्फ उस समझ को एक वेट देना। ट्रू। और वो वेट
उसी पॉजिटिविटी से आता है जो एक सेल्फ टॉक हम करते हैं अपने साथ या लिखते हैं या बोलते हैं. I think Divya ji, this is one mistake we have started committing. You know, पुराने वक्त में gadgets नहीं होते थे इतने. So always used to get that me time. सोते वक्त ही सही, खाना खाते वक्त ही सही, कभी ना कभी अच्छा घर से स्कूल जाते वक्त या स्कूल से घर आते वक्त वो कहीं ना कहीं आपको मी टाइम मिलता था. बट गैजेट्स हमारी इतनी भर दी है कि हमें खुद से बात करने के लिए वक्त नहीं मिलता. एंड दैट इज वन मेजर रीजन कि इतना chaos है हमारे अराउंड. हम हर रोज जितनी खबरें पढ़ते हैं, जितना ऐसे स्क्रॉल करते हैं, वो हमारे माइंड में चीजें भरना जा रही है. इम्प्रेशन तो कहीं ना कहीं है ना, इसे कहीं तो साफ करना पड़ेगा. ऑब्वियसली डस्ट बिल्कुल फुल हो जाएगा, वो तो कहीं ओवरफ्लो करेगा. तब तो यूज आपको कितनी जल्दी खाली करते हैं so that fresh things can actually get into you. तो बड़ी बारी देखा है जब लोगों को गम होता है ना तो गाने लिखते हैं, दिल से पोइट्री निकलती है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है, वो जो अंदर के ख्याल है वो ऐसे जैसे बहाव की तरह बह रहे होते हैं. वो बहने में ही इतनी रिदम हो जाती है कि अगले को लगता है यार गाना वाह कुछ निकला है. और वो सेंस ऑफ वंडरमेंट ना इंसान को उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड से बड़ी आराम से बाहर निकाल देती है. तो ये सारी चीजें अगर एक इंसान अपनी लाइफ में लागू करे और लेके आए तो एंजाइटी कहाँ है, हीट कहाँ, किसको करना, ये तो अपनी ही सोच. Right. She used to go and pull out the mill now. That's what I used to do and I still do. कि अपने आप से बातें करना शुरू हो जाना and like लिखना, even writing general when I used to feel like so ऐसे लिखना शुरू करती हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है. तो मैम मेरा भी है कि वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत रोल प्ले करता है आपके लिए बीइंग एन आरजे, कि मतलब बिल्कुल आवाज से सबको ऐसे दिल बहला देता है सबका. और कैसे मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन वो चीज आ गई कि आपको अपनी बात कैसे रखनी है, वॉइस की कैसे पिच रखनी है, किस वे में बात करनी है. तो आप कैसे इस चीज को मैनेज करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि अब आपको किस वे में बात करनी है या किस चीज में वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए. तो ये कितना इम्पोर्टेंट है वॉइस मॉड्यूलेशन आपके लिए? वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है यार. अच्छा एक बात याद यू नो बचपन में देखते थे ना तो माय फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव. वो मेरा डायलॉग डिलीवरी पे कहते जाते थे मेरे फादर. ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि कैसे बोल रहा है, ऑब्जर्व कर. वो खुद बहुत अच्छा थे, शायर थे, अभी भी लिखते हैं पर बहुत कम कर दिया है. बट ही यूज्ड टू गाइड मी कि अगर कोई कुछ कहता है उसके बोलने के अंदाज को ऑब्जर्व कर. जब आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप बारीकियों में जाना करते हो. एंड देन यू ग्रेजुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इमोशंस कि कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट करती है, कैसे लगती है. मतलब कौन सी ऐसी चीज़ तो मुझे रोना आ गया, कुछ कैसे बोला गया कि मुझे हंसी आ गई, कुछ कैसे बोला गया कि यार बहुत नॉर्मल सी बात थी बट मेरे दिल को छू गई. वो चीज़ें मैंने नोटिस करना शुरू कर दी बहुत छोटी उम्र से. एंड देन एक्चुअली जब चीज़ें है ना बीइंग एन आरजे डेफिनेटली वही बात. रेडियो पे जब आप बैठे कि आपको देख नहीं रहा, वो आपके चेहरे के नहीं देख रहे. अभी जैसे अभी तो हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस सर्टेन थिंग्स विद माय आईज, विद माय हैंड्स, फेशियल जेस्चर के साथ. बट रेडियो पे वही आवाज किसी को मेरे करीब ला सकती है और वही आवाज परेशानी में गिरा सकती है. तो वॉइस मॉड्यूलेशन आई थिंक नॉट जस्ट फॉर एन आरजे बट एवरीवन. अब ऐसा कभी नोटिस किया घर पे कभी लड़ाई हो जाती है, कभी डांट पड़ती है तो पापा कैसे डांटते हैं और फिर मम्मा उसको कैसे कवर अप करती है. तो वो हमारे घरों में है. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू अडैप्ट दैट थिंग. मतलब कई बार मुझे आज भी याद है बचपन में बहुत ऐसे लड़ाई वड़ाई करके आए हैं, बहुत हाइपर होके आए हैं. दादी एक सेकंड में आपको सूद आउट कर लेती थी अपनी एक बात से. तो दैट यूज्ड टू बी अ ट्रिक कि हाँ यार ऐसे बात करने से इंसान का गुस्सा शांत हो जाता है. इट्स जस्ट दैट हमको वापस से वो सादगी अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी ताकि हम उन चीजों को समझ सकें. One second. Yeah.
सो काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट्स में लिख सकता है, क्वेश्चन बॉक्स में पूछ सकता है. सो हम उसको एंड में रिप्लाई कर देंगे. एक कहानी आई गेस कोई और ऐड हो गया. Hi, my name is Shamim. सर अभी सेशन चल रहा है, आप एक सेकंड प्लीज लीव कर सकते हैं. Okay. Okay. Okay, I will leave. Okay. ओके आई डोंट नो क्या हो रहा है. दैट्स ओके. कई बार होता है नेटवर्क ग्लिच की वजह से. मुझे कहानी याद आ गई, कहानी सुनाते हैं जब तक मैं जी वापस से ज्वाइन करते हैं. ये कहानी है 11 साल की लड़की की जिसे गाने का बहुत शौक था. इतना शौक था कि फादर को लगा कि यार कोई बात नहीं, इसे सिखाना चाहिए. उसे एक म्यूजिक स्कूल भेजा गया जहाँ पे उसे हारमोनियम बजाना सिखाया जाता था और बेसिक म्यूजिक के जो सुर है उसकी नॉलेज दी जाती थी. उसके टीचर ने उसे बताया कि बेटा एक कंपटीशन हो रहा है, आप पार्टिसिपेट करो. बहुत एक्साइटेड घर पे सबको बताया कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी, मैं तो जीत के आऊंगी. कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, 2 अपने फेवरेट गाने अच्छे से तैयार किए. और जिस दिन कंपटीशन था उस दिन पता चला कि लड़कियां सिर्फ 2 हैं और बाकी सब लड़के हैं कंपटीशन में. कोई एज ग्रुप नहीं था, कोई क्राइटेरिया नहीं था कंपटीशन का. इट वाज एन ओपन सिंगिंग चैलेंज. कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जैसे अपनी परफॉर्मेंस देके नीचे उतरी, इतनी तालियां, सबने कहा वाह बेटा इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा गाते हो, क्या बात है, तुम तो पक्का जीतोगे. लास्ट में जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो पता चला कि जो दूसरी लड़की थी उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया और उस लड़की को सेकंड. बाद में पता चला कि जो जज थे वो जो लड़की फर्स्ट आई है ना उसके पापा थे. भाई साहब इतना ज्यादा अपनी ट्रॉफी उठाई. पापा के पास ना तब स्कूटर हुआ करता था. स्कूटर के आगे वो बास्केट होती है ना, उसी पे जाके अपनी ट्रॉफी से फेंक दी और रोना शुरू कर दिया. टीचर आए, सर पे हाथ रखा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जीत जाओगे. थोड़ी देर में पापा आए. पापा ने गुस्से से पूछा क्या बात है, रोना क्यों आ रहा है? पापा मैं सेकंड आई. पापा ने पूछा तो क्या हुआ, ये भी तो प्राइज तो मिला ना? नहीं पर मेरा फर्स्ट प्राइज आना चाहिए था. पापा ने फिर पूछा अच्छा फर्स्ट प्राइज क्यों आना चाहिए था? पापा मैंने इतना अच्छा गाया, मेरा तो फर्स्ट प्राइज आना चाहिए था ना. पापा ने फिर पूछा अच्छा तो तुम्हें लगता है तुमने सबसे अच्छा गाया? हाँ पापा मैंने सबसे अच्छा गाया. पापा हंसते हंसते उसके सर पे हाथ रखा और उसे कहा कि जब तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम अपने लिए फर्स्ट हो, तो फिर क्या मैटर करता है कि लोगों ने तुम्हें क्या पोजीशन दी? यू आर ऑलरेडी अ विनर. और वो लड़की मैं थी. सबसे अच्छी बात पता क्या है श्वेता, दैट अभी आप जब ये स्टोरी सुना रहे थे ना ऐसा लग रहा था हम रेडियो पे सुन रहे हैं. एग्जैक्टली. देयर वाज सो मच ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन कि हर एक चीज, हर एक वर्ड, हर एक फीलिंग बिल्कुल सामने नजर आ रहा था. नो मैटर मैंने थोड़ा सा मिस हो गया बट फिर भी मुझे पूरी वो फीलिंग आ रही थी. तो प्रोबेबली दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टोरीज कि आप किसी को अपनी बातों में उसके इमोशन तक पहुंच सकते हो. Probably that's more beauty of your voice and probably the voice modulation that you do. Because वो जब तक नहीं हो तो स्टोरी भी फ्लैट ही जाती है. जितनी मर्जी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो बट वो फ्लैट ही जाएगी. इसके साथ चलती है ना वो अपने आप इमोशंस में बह जाती है. एंड मे बी दैट इज व्हाट यू वर सेइंग कि हर किसी को अपने आप से ही बात करनी चाहिए बिकॉज वो इमोशन से कनेक्ट करेंगे. वहाँ आपको स्टोरी टेलिंग करना आनी नहीं चाहिए. You just start sharing what you are feeling and you become a storyteller. Probably दिल की दिल से बात है. बिल्कुल. तो जब दिल से की जाएगी तो दिल से ही निकलेगी और दिल तक ही पहुंचेगी. तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक मेरे पास भी एक छोटी सी स्टोरी है. तो हमारे कोई नए दोस्त बने तो वो कविताएं लिखते थे, मैं भी कविताएं लिखती थी. तो मुझे अच्छी लगी उनकी पहली कविता, उन्होंने पढ़ी थी. तो उन्होंने लिखा था खुद से खुद की मुलाकात. तो मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया. पहले तो मैंने पढ़ा, आई फेल्ट कि भाई ये तो दिस इज समथिंग आउट ऑफ बॉक्स.
तो मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और मैंने खुद से खुद की मुलाकात का पहले खुद ही एक एक्सटेम्पोर दे दिया, एक छोटा सा ब्रीफ, एंड देन आई नरेटेड द एंटायर पोएम, रिसाइटेड द पोएम रादर। तो वो इतना खूबसूरत बन गया कि जिनको हमने वो भेजा उन्होंने कहा यार ये क्या भेज दिया तुमने मेरे को, इतना खूबसूरत। और वो ऐसा ऑडियो कि उसके बाद हम लोग कभी रुके ही नहीं, वो पोएम्स बेचती रहती थी और मैं एक्सटेम्पोर्स देती रहती थी। वाओ, इतना खूबसूरत जर्नी बन गई कि हमने 30 ऑडियोज बनाई ऐसी, एंड एक से बढ़कर एक सारी। मजा आता था और अंदर से जैसे कुछ खिलता था, मेरे भी एक्सप्रेशंस आते थे और उनके भी एक्सप्रेशंस बाहर निकलते थे, और कंबाइन जब दोनों एक्सप्रेशंस होते थे टोटली एक अलग डायमेंशन पे चले जाते थे। तो डायमेंशन टू डायमेंशन यू ट्रैवल विद योर वॉइस एंड ऑफ कोर्स विद योर मॉड्यूलेशंस। तो मॉड्यूलेशंस जैसे अब कोई कहता है यार मुझे एंजाइटी हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं इनको भी ना अपने इंटर्न्स को भी एक एग्जांपल दे रही थी कि नाना पाटेकर का अगर आप सुनो तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी फास्ट है किसी भी चीज को बोलने के लिए, और अगर आप शाहरुख खान को सुनो तो उनकी अलग है। तो दोनों का एक सोचने का तरीका, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग अलग है। एक बहुत इराटिक बिहेवियर के हैं, एक बहुत जेन्युइन और फुल ऑफ लव। तो वो लव कैसे एक्सप्रेस होगा जब आप उन शब्दों को गहराई के साथ, समय के साथ, वक्त देकर फिर बोलेंगे। तो अगर हम साइंस को देखें, साउंड इज अ वेव, जो भी हम बोल रहे हैं तो साइनसॉइडल वेव है, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसा इम्पैक्ट पड़ेगा खुद पर भी, अगलों पर भी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेट्स से पर दो वेव्स के बीच में, ट्रस्ट और क्रेफ्ट के बीच में अगर टाइम पीरियड ज्यादा है, प्रोबेबली हम हर वक्त हर शब्द को बड़ा ही सोच समझ के बोलेंगे। तो खुद को भी समझ आएगी, जैसे आप बोलते थे कि मेरे एहसास क्या हैं, मेरी इमोशंस क्या हैं, कहाँ से ये चीजें आई, और जब वो एक्सप्रेशंस में निकल गई शायद आप भी उससे फ्री हो गए। बिल्कुल। और आज के टाइम में मुझे लगता है हर इंसान को ये करना चाहिए, बात करें, एक दूसरे के साथ बात करें, छुपाएं मत कुछ। लोग आजकल झूठ में छुपाने लगे हैं। कोई चीज नहीं पसंद आती बोल दो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगला नाराज हो जाएगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं माना हुआ होगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि उसको पता इसने सच बोला। तो डरिएगा नहीं, पेंडेमिक से भी डरिएगा नहीं, जो भी मन में है बोल दीजिए। अपने ग्रुप में बैठिए। पहले होता था ना, जैसे गांव में चौपाल होती थी, पेड़ के नीचे सब बैठते थे, डिस्कशंस करते थे कि आज का क्या एजेंडा है, उस एजेंडा पे बात होती थी, सॉल्यूशंस आते थे। इसी चीज की जरूरत है, उसी चौपाल की जरूरत है कि लोग फिर इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं। प्रॉब्लम ये पेंडेमिक भी इसलिए आया है। आई गेस फिर से पॉज हो गया। हाँ, नेटवर्क में इशू है। ये जो एक्सप्रेशन की और मॉड्यूलेशंस की बात कर रहे थे, मुझे याद आया, आई ऑलवेज लव्ड डांसिंग ऑल्सो। मुझे हमेशा डांस का बहुत शौक था, बट कॉलेज जाके मुझे कथक सीखने का मौका मिला। आई वाज सो फॉर्चुनेट। मैंने अपनी बीटेक के साथ साथ एज अ हॉबी मैंने कथक परस्यू किया है। और कथक जब मैंने सीखा, आई पर्सनली रियलाइज दिस वन फैक्ट कि हम लोग, आप कभी साउथ इंडियन से मिलोगे ना, आप उनको बहुत हम्बल समझोगे, एंड दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट व्हेन दे टॉक। वन रीजन बिहाइंड इट कि वो लोग हमेशा किसी ना किसी आर्ट फॉर्म से जुड़े रहते हैं। अब कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो सिंगिंग, डांसिंग है, चाहे वो थिएटर है, चाहे वो पेंटिंग है, वो आपको एक्सप्रेशन का एक जरिया दे देती है। एंड अगर मैं डांस की प्रिसाइजली बात करूँ तो जब हम तांडव करते हैं, यू आर वेरी एग्रेसिव एंड इट्स वेरी फास्ट, बट जब हम भाव पक्ष करते हैं तो वो बहुत नजाकत से होता है, अदाओं से होता है और बहुत स्लो होता है। सो दैट कनेक्शन वहां बिल्ड होता है। वो जो फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे थे, जैसे नाना पाटेकर की और अगर शाहरुख खान की, तो जो भाव पक्ष है, जो इमोशंस है, वो हमेशा धीरे से कन्वे होते हैं। वो आप एकदम से नहीं ऐसे ब्लंट होके बोल सकते, बट देन वेयर यू नीड टू शो योर एग्रेशन, यू जस्ट हैव टू डू इट। इज दैट राइट? Yeah, definitely, and probably शायद मैं भी उसी, मतलब I was also talking on the same lines कि so important to give a break and then think and then speak. It gives you every word very appropriately and you places it at a very right time. मैं आज तो ये बात कर रही थी
कि कोई भी इंटरव्यू आप देने जाते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपकी हॉबीज क्या है. एवरी इंटरव्यूअर आस्क यू दिस क्वेश्चन. और यू नो व्हाई? Because your hobby keeps you alive somewhere. Your hobby connects you with yourself. Gardening है, cooking है, painting है, drawing है, dancing है, singing है, theater है, खुद से बातें करना है, डायरी राइटिंग है, anything, any, कुछ भी, जो भी आपकी हॉबी है, just spare 5 minutes, 10 minutes for it, and you will start connecting more with yourself. Right, so right. And this is the need of an art. True. बहुत ज्यादा. तो सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दूसरे के साथ वक्त तो गुजारिए, अपने साथ जरूर गुजारिएगा, ताकि जान पाएं कि खुद से खुद की मुलाकात कब हो सकेगी. राइट. तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि सबकी आवाज़ अलग अलग होती है, तो सबके इम्पैक्ट भी लोगों पे अलग अलग तरीके से पड़ते हैं. तो क्या हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों को हेल्प कर सके इस पैंडेमिक में, नेगेटिविटी से बाहर निकलने में, या इन एनी वे जहाँ पे वो अपनी आवाज़ रख सके? जरूर. हमारा ये प्लेटफॉर्म ही इसी के लिए बना है. अगर हम लाइव जा रहे हैं इस पेंडेमिक में, इसीलिए है कि हमारे जैसे और श्वेतमा जैसे और लोग जुड़े. तो जैसे अभी मैं आउट हो गई थी, somebody else came in. Probably he should have been given an opportunity to speak. तो नेक्स्ट टाइम हम ये जरूर रखेंगे, ताकि जो भी आता है हमारे साथ जुड़ता है बाय लक और बाय चांस, राइट, वो बोल पाए, वो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. बाकी रेस्ट वी विल डेफिनेटली गेट इन टच विद श्वेतमा एंड सी हाउ वी कैन गो अहेड, एंड वी कैन ब्रिंग मोर पीपल टुगेदर, जो जम्मू के अच्छे मतलब पीपल हु हैव गुड फॉलोअर बेस, सो दैट वी रीच आउट टू मोर पीपल पेंडेमिक टाइम में, और फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी, wherever it is possible. तो मैम, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है आरजे, बीइंग आरजे, और मतलब आप तो सब कुछ प्यार ही हो गया आपकी वॉइस से. इवन व्हेन आई वाज लिसनिंग योर स्टोरी ना, मैं तो ऐसे थी कि ये कहाँ से, ऐसा लग रहा सच में रेडियो सुन रही हूँ. तो आपको क्या मतलब एक्सपीरियंस है? तो ऐसा कोई इवेंट होगा जहाँ पे आपको खुद से अंदर से बहुत अच्छा सा फील हुआ होगा कि हाँ आज कुछ हुआ है, कि बहुत ऐसा है कोई एक इवेंट जहाँ पे आप बहुत खुश हुए? यहाँ पे भी मैं एक बात सुनाती हूँ. ये जो कहावत है ना, ये लाइंस हैं कि चीज को आप शिद्दत से ना हो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है. दिस एक्चुअली केम थ्रू फॉर मी, और ये मुझे वीडियो में आके रियलाइज हुआ. और एक और चीज जो साथ में रियलाइज हुई कि हम मतलब मेरा ना कभी कोई एम इन लाइफ ही नहीं था. एक साल अगर मैं लिखती थी कि भाई मुझे वो स्कूल में एस्से में लिखते हैं ना, माय एम इन लाइफ, मैं 5th में लिखती थी डॉक्टर बनना है, 6th में लिखती थी आईएएस बनना है, 7th में लिखती थी नहीं मुझे आर्मी में जाना है, 8th में लिखती थी नहीं मुझे पायलट बनना है. हर साल वो एम इन लाइफ चेंज होता था. सो वन डे आई एक्चुअली सैट विद माय फादर, और मैंने बोला, मैंने तो पापा मैं कितनी कंफ्यूज हूँ यार, मतलब मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या करना है. कहते तुझे इतनी दूर की क्यों सोचनी है, तो अभी की सोचना, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, राइट नाउ, व्हाट डू यू वांट टू डू. मैंने कहा हाँ यार ये भी सही है. कहते इतने बड़े गोल्स मत बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ. फिलहाल क्या चाहिए, अभी क्या करने का मन है, अभी क्या चीज खुशी देता है. व्हाट कीप्स यू हैप्पी इज योर एम. जिंदगी का अल्टीमेट एम क्या है? खुश रहना ना. वो टारगेट्स वो सब पे टिक मार्क तो लग जाएगा, बट अगर तुम खुशी नहीं होगे तो व्हाट्स द पर्पस. तो ये चीज मुझे समझ आई. अच्छा, फिर मेरी लाइफ बहुत ही ना से उथल पुथल वाली रही. 10th तक मैंने नॉर्मल, मतलब 10th तक तो सारों के सारे सेम सब्जेक्ट्स होते हैं. 11th 12th में मैथ्स नहीं लेना चाहती थी, बट माय फादर वांटेड मी टू टेक, तो मैंने मैथ्स में नॉन मेडिकल ले लिया. अब 10th के बाद फिर 12th के बाद मुझे लगा कि नहीं यार अब तो आर्ट्स लेना है, मतलब पढ़ाई से स्यापा ही जाए. बट मेरे पापा को लगा खानदान में पहली इंजीनियर आ जाएगी तो बेटा आप इंजीनियरिंग करोगे. आई वाज लाइक ओके ठीक है. But I was always into co-curricular activities. Singing में, dancing में, sports में, theater में, painting के नाम पे मुझे कुछ नहीं आता. वो सीनरी आती है, वो जो पहाड़ बना दो, सूरज बना दो, नदी बना दो, that's it. So, but I used to try everything. कॉलेज जाके के साथ साथ मैंने कथक, फोक ऑर्केस्ट्रा सीखा. फोक ऑर्केस्ट्रा क्या है? You play different instruments
और वो 10 मिनट का एक सिर्फ म्यूजिकल ट्यून्स बनती हैं जिसमें एक टीम परफॉर्म करती है. सो वी हैव वॉन दैट. नेशनल में हमने फोक ऑर्केस्ट्रा जीता था. और वो फोक ऑर्केस्ट्रा में क्यों पार्टिसिपेट कर पाई, क्योंकि मैं स्कूल में जो वो ड्रम नहीं बजाते थे जो मार्च पास होता था, आई यूज्ड टू प्ले मतलब वो स्कूल टाइम में वो फ्लूट बजाई थी, ड्रम बजाए थे, साइड ड्रम बजाए थे, कॉम्बो बजाती थी. वो सारी चीजें मुझे कॉलेज में इस्तेमाल हुई. वहां मुझे लगा कि अरे वाह यार, मतलब मेरा कुछ टैलेंट कहीं काम आया. कॉलेज से बाहर निकले, जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू होने लगी, तब लगा कि भाई आता ही कुछ नहीं है, सिर्फ सब कुछ किया है बट देयर वाज नथिंग ऐसा जो मैंने कंप्लीटली सीखा. सब कुछ थोड़ा सीखती चलती गई. बट देन मे बी रेडियो वाज दैट वन प्लेटफॉर्म जिसने मुझे हर चीज से कनेक्ट कर दिया. मतलब वो मेरे लिए कंप्लीट पैकेज बन के मेरी लाइफ में आया. आई नेवर हैड थॉट कि मैं रेडियो में जाऊंगी. बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, आई वाज वर्किंग विद द कॉर्पोरेट, दिल्ली में थी मैं. एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरी मम्मी को ख्याल आता है कि नहीं भाई, बहुत उम्र, बहुत देर से बाहर रही है, घर वापस आ जाओ, अब तुम्हारी शादी करानी है. थैंकफुली उस टाइम पे शादी तो नहीं हुई, बट आई गॉट टू नो कि जम्मू में रेडियो मिर्ची खुल रहा है. एंड दैट इज हाउ आई गॉट इनटू रेडियो. मैं ऑडिशंस देने गई एंड आई हैड नेवर थॉट कि रेडियो को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कंप्लीट पैकेज मेरे लिए बनेगा जहाँ पे मेरी टेक्निकल स्किल्स भी कहीं ना कहीं यूज होंगी, जहाँ पे मेरी सिंगिंग का पैशन, डांसिंग का पैशन, थिएटर का नॉलेज, लोगों से बात करने में जो मुझे मजा आता था, शायरी लिखने में मजा आता था, स्टोरीज लिखने में मजा आता था, वो सारी चीजें एक पैकेज की तरह मेरी लाइफ में जुड़ गई. So this is one thing I always say to everyone. You know, हम लोगों को सबसे ज्यादा एंजाइटी इस बात को लेके होती है कि यार फ्यूचर क्या है, क्या करना है लाइफ में, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मैं तो गलत कर रही हूँ. लीव एवरीथिंग एंड लिव द मोमेंट. अभी जो है बस उसको जी लो. आई नो शायद इतना नहीं कर पा रहे जितना हम करना चाहते हैं, but can we just trust कि जितना कर रहे हैं वो काफी है फिलहाल के लिए. Maybe we can just step छोटे कदम. मुझे आज भी याद है करनी चाहिए थी, तुझे मास कॉम कर लेनी चाहिए थी, मास कॉम कर लेती तो ज्यादा अच्छा करियर होता. मैंने कहा शायद पापा मुझे ऐसे ही चलना था, मुझे ये स्ट्रगल्स देखनी थी टू रीच वेयर आई एम टुडे. अगर वो स्ट्रगल्स नहीं देखती तो शायद मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती. एंड वेयर आई एम टुडे, वो सारी एक्सपीरियंसेस हैव मेड मी हु आई एम टुडे. सो नेवर थिंक कि आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे. जस्ट कीप मार्चिंग, छोटे कदम ही सही, बस चलते जा. Right. So, ma'am, we have one question from the comment section. जी. क्वेश्चन है कि श्वेतिमा मैम, मॉड्यूलेशन के अलावा और क्या जरूरी होता है फॉर बीइंग अ बेटर जॉकी? देखो, मेरा हमेशा ये मानना है कि हर इंसान अलग होता है, राइट. हर किसी का बात करने का तरीका, डिलीवर करने का तरीका अलग होता है. सो पहली गलतफहमी जो लोगों को होती है कि भाई रेडियो में आने के लिए आपकी आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. Yes, voice modulation होनी चाहिए, that is the only way to be able to connect. और क्योंकि रेडियो पे कोई देख नहीं रहा, वो आपकी आवाज से ही आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं. दूसरा, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम कहते हैं, हमें बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी सही होनी चाहिए, तभी तो आप बात कह भी पाओगे और दूसरों की बात समझ भी पाओगे. क्योंकि रेडियो इज नॉट प्रिसाइजली वन-on-one मीडियम. आप कहते भी हो और सुनते भी हो, और लोगों की यू बिकम पीपल्स वॉइस. So you have to be very much connected with people to become their voice. So that is one main quality I think every RJ, everyone who aspire to be an RJ should have. Right. Ma'am, do you want to add something? Yeah, definitely. My only suggestion is meditate well, because human technology, human software is very different from the softwares human mind has created. तो अगर अपनी ह्यूमन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है तो आपको अपना सॉफ्टवेयर तो अपडेट करना पड़ेगा. तो जैसे मैं आज बच्चों को भी बोल रही थी कि जब भी आप बोलें, अनफॉर्चुनेट रहा आज थोड़ा सा कि मेरा आना जाना हो रहा है. तो यू कीप फोकस ऑन योर थ्रोट, बिकॉज व्हेन यू कीप योर फोकस ऑन योर थ्रोट, you know you have your whole attention there. So whatever word is coming with full awareness and full warmth and love. तो वो बहुत जरूरी है. Right. And one more, there was one suggestion also कि हम online चौपाल शुरू करें. In the group, somebody has written that. Yeah, so probably we'll work on that definitely.
Let's see how we can do that and where we can do that. बिल्कुल. So ma'am, it was an amazing session. Literally मुझे तो लगा ही नहीं कि I'm talking to her for the first time. मतलब ऐसे session होना बिल्कुल feel नहीं हुआ मुझे. So this was really an amazing session, over informative and unique concept. The magic effect, one of the voice over so many minds. The capacity of one's voice to influence blooming and transformation in other people. Those words of comfort, of friendliness and trust are in fact very well needed in these times. We all wholeheartedly thank RJ Shritima ma'am for her time and knowledge. It was a pleasure to have you ma'am on board. Thank you ma'am for giving this opportunity to us. I totally loved being here. I totally loved talking to all three of you. Same here, Shweta, and we'll definitely get in touch soon and see how we can go ahead. Definitely. Thank you so much. Thank you so much. So much. Okay, Thank you. Bye bye. Bye. ताकि हम इकट्ठे मिलके कुछ एक think about something that we can create for J&K. Definitely, and that's the agenda. For it. इसके साथ साथ ना just one more thing that mind is a very tricky part of the body and probably not the most untangible thing. अब उसको पकड़ नहीं सकते. तो जब हमारे साथ कुछ होनियां हो रही होती हैं तो हम अपने मन में ही कहानियां बनाते हैं. तो वो कहानियां अगर बाहर आना चाहें तो कैसे आए, क्योंकि हम उनके पास ना ही प्लेटफॉर्म है और ना ही वो आवाज है. आवाज होते हुए भी शब्द नहीं मिलते क्योंकि आदत नहीं थी. तो आदत लाने के लिए हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जहां पर लोगों को अपनी कहानियां सुनाने का मौका मिले अपनी ही आवाज में और अपने एक्सप्रेशंस को बाहर लेके. अब जैसे आप बात कर रहे थे ना, आपकी वॉइस में एक वेरिएंस आ रही थी कि कभी आवाज में ऊपर और कभी नीचे. तो वो वेरिएंस जब इंसान के अंदर आनी शुरू हो जाती है, वो समय के साथ चलना शुरू हो जाता है, वक्त के साथ चलना शुरू हो जाता है. तो वो वक्त के साथ लोगों को हम ढाल पाएं कि जो हो रहा है वो तो होगा ही होगा, उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन कैसे उस होने के साथ हम बढ़ चले आगे. तो खूबसूरती वहीं पर ही आ जाएगी और कुछ ना कुछ ये जरूर पेंडेमिक हमें सिखा के जाएगा. बिल्कुल. मैम, जैसे अभी आप बात कर रहे थे सिचुएशन के बारे में कि कितनी नेगेटिविटी फैल चुकी है. सो इफ वी टॉक अबाउट एंजाइटी, आजकल हर दूसरे बंदे को एंजाइटी है. सो आइदर वो उसके बारे में बात नहीं करते हैं या फिर दे डोंट रियलाइज इट. तो क्या हम उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी बताया कि कहानियां जो आप अपने मन में बता रहे हैं अपने आप को, किसी को सुनाएं. कोई नहीं भी है ना, तब भी अपना मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करें, रिकॉर्ड करें और अपने आप को ही सुनाएं. आप खुद जानेंगे कि अंदर चल क्या रहा है. हम अपने अंदर इतनी कहानियां उलझा लेते हैं, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, तो मेरे साथ क्या होगा. क्या होगा आपके साथ? जब आपके साथ भगवान है, आपके साथ आपके फैमिली वाले हैं, आपके साथ आपके दोस्त हैं, क्या होगा आपको? दुआएं देने वाले. तो पॉजिटिविटी की कमी ना हो और ऐसे इंसान की भी कमी ना हो जो इंसान आपकी बात सुने, तो आप वो इंसान अपने लिए खुद बन जाए. तो जब अपने ही ख्यालों को, अपनी ही स्टोरीज को, मेंटल स्टोरीज को जब बाहर लेके आएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ताकत कैसे आ जाएगी अंदर. आपको पता ही नहीं चलेगा. एंजाइटी तो उधर ही खत्म हो जाएगी. और खुद को दिलासा नहीं देंगे, लोगों को भी दिलासा देने लगेंगे. फैमिली को भी तो सपोर्ट चाहिए. सही. श्वेता, मैं आपका क्या कहना है इसमें? अरे सच में, मतलब हम ना ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं. ये रियलिटी, मतलब किसी और के साथ हम पहले ही परसीव करने लग जाएंगे, हाय अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, अगर मेरे साथ, मतलब पॉजिटिव साइड हमें बाद में दिखती है, पहले नेगेटिव पे दिमाग जाता है. सो दैट इज वेयर यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन कि वो जो गुच्छे उलझते जा रहे हैं, याद है जब गुड्डियां उड़ाते हैं तो पीछे एक बंदा खड़ा रखा होता है जो उसको स्ट्रीमलाइन करता है ताकि आपकी डोरी ना जाए. तो डोरी जो उल्टी है वो खुद ही सुलझानी पड़ेगी. नोबडी इज गोइंग टू कम डिटैंगल लाइक यू सेड. वो कोई भी नहीं करता. राइटिंग एक्सरसाइज, खुद से बात करने की एक्सरसाइज, आई सो मच यूज्ड टू डू इट. आपने जब कहा ना, मेरे को एकदम से हंसी सी आई क्योंकि मैं बहुत करती थी. मैं शीशे के सामने
मैंने ऐसे बस खड़े हो जाना है, क्या पागल हो गई है तू, क्या कर क्या रही है? नहीं, दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी डन लाइक दिस, तो ऐसे करना चाहिए था ना। अच्छा अभी भी गलत नहीं, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, सही हो जाएगा। चल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चांस लेके देख लेते हैं ना, ठीक हो जाएगा। एंड दैट थिंग एक्चुअली हेल्प्ड मी गेटिंग आउट ऑफ दैट जोन, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि हर चीज का सॉल्यूशन मेरे पास है। इट्स जस्ट दैट कि मेरे प्रॉब्लम पे ज्यादा होता था, सॉल्यूशन पे कम। बट देन व्हेन यू चेंज योर लाइक शिफ्ट, जैसे आप वो लेकर आते हो, आप स्ट्रीमलाइन करने लग जाते हो, अपनी चीजों को प्रायोरिटी वाइज लिखने लग जाते हो, आप बात करने लग जाते हो, आंसर्स खुद ही से मिल जाते हैं। गाइड तो अपने अंदर ही है, समझ तो अपने अंदर ही है, सिर्फ उस समझ को एक वेट देना। True. और वो वेट उसी पॉजिटिविटी से आता है जो एक सेल्फ टॉक हम करते हैं अपने साथ, या लिखते हैं या बोलते हैं। I think this is one mistake we have started committing. You know, पुराने वक्त में gadgets नहीं होते थे इतने, तो always used to get that me time. सोते वक्त ही सही, खाना खाते वक्त ही सही, कभी ना कभी, अच्छा घर से स्कूल जाते वक्त या स्कूल से घर आते वक्त, वो कहीं ना कहीं आपको मी टाइम मिलता था। बट गैजेट्स ने हमारी लाइफ इतनी भर दी है कि हमें खुद से बात करने के लिए वक्त नहीं मिलता। एंड दैट इज वन मेजर रीजन कि इतना chaos है हमारे अराउंड। हम हर रोज जितनी खबरें पढ़ते हैं, जितना ऐसे स्क्रोल करते हैं, वो हमारे माइंड में चीजें भरता जा रही है। इम्प्रेशन तो कहीं ना कहीं है ना, उसे कहीं तो साफ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली डस्टबिन बिल्कुल फुल हो जाएगा, वो तो कहीं ओवरफ्लो करेगा। इट्स अप टू यू, आपको कितनी जल्दी खाली करते हैं so that fresh things can actually get into you. तो बड़ी बारी देखा है, जब लोगों को गम होता है ना तो गाने लिखते हैं, दिल से पोइट्री निकलती है, कि एक्सप्रेशन आ रहा है, वो जो अंदर के ख्याल है वो ऐसे जैसे बहाव की तरह बह रहे होते हैं। वो बहने में ही इतनी रिदम हो जाती है कि अगले को लगता है यार गाना, वाह कुछ निकला है। और वो सेंस ऑफ वंडरमेंट ना इंसान को उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड से बड़े आराम से बाहर निकाल देती है। तो ये सारी चीजें अगर एक इंसान अपनी लाइफ में लागू करे, वो लेके आए, तो एंजाइटी कहाँ है, नीड कहाँ, किसको करना? मेडिटेट वेल, because human technology, human software is very different from the softwares human mind has created. तो अगर अपनी human technology को डेवलप करना है तो आपको अपना सॉफ्टवेयर तो अपडेट करना पड़ेगा। तो you keep focus on your throat, because when you keep your focus on your throat, you know you have your whole attention there. So whatever word is coming with full awareness and full warmth and love. तो वो बहुत जरूरी है। So ma'am, it was an amazing session. We all wholeheartedly thank RJ Shritima ma'am for her time and knowledge. Same here, Shweta, and we'll definitely get in touch soon and see how we can go ahead. Definitely.